तुम यूजलेस हो, किसी के नज़र में आता है कि इससे नहीं हो पाएगा, या किसी के रूम में आप बैठे हुए हैं वो आपको इग्नोर करेंगे। क्या ही करोगी बन के घर पे बैठ जाओ ना, अपना बच्चा संभालो, घर संभालो। पर लोग ये नहीं समझते कि एक औरत का भी सपना कुछ बनने का होता है। मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ। जब घर में दर्द होता है ना तो आदमी जल्दी जल्दी उड़ना चाहता है, फिट लगना चाहिए, हॉट लगना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जिंदगी का हर दिन दिया है मैंने, सैटरडे संडे दिया है। यू विल अंडरस्टैंड एवरीवन एज एन एंटरप्रेन्योर। What is Shraddha Sharma's purpose now in life? देखो I'm very excited to have here with me Shraddha Sharma, जो योर स्टोरी की फाउंडर रह चुकी हैं। जब हम 2015 में हमने जोश टॉक शुरू ही किया था और मेरा पहला ट्रिप था बैंगलोर का, तो मैं श्रद्धा को मिली थी वहाँ जाके। और एक्चुअली वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं ऑफिस पहुँची श्रद्धा के और वो ऑफिस में नहीं थी। फिर मैं मेट्रो लेके ओबरॉय होटल की कॉफ़ी शॉप में पहली बारी मिली, एंड आई थिंक उसी टाइम से आई वॉज in awe because I had never met a woman who was carrying the conversation the way that Shraddha does. And I think you were sitting with a bunch of investors वहाँ पर ओबरॉय की कॉफ़ी शॉप में, and from then to now your story and Shraddha has served as an inspiration and a role model to me personally. So I'm very excited to have you here on our first episode. थैंक यू सुप्रिया। एक बहुत बड़ा वो होता है पावर टू सी गुड इन अदर्स एंड टू recognize and to say good, and that you have. So yes, I'm happy to be here. My first question to you, which is probably the most cliched question, but I really want to know is ki, who do you look up to? Who has been a role model for you in your journey and has continued to be there as a source of inspiration throughout? That's a very good question, Supriya. You know, life में at different points for different things there are different role models, if I may say so. School में teachers थे काफ़ी. My mother has been a constant role model for me. बहुत लोगों से मिलती हूँ अब और different चीज़ों के लिए they inspire and something about them stays. And in some way some conversation changes you to be a different person or to become a better person. जैसे कल जब मैंने नाज जो ट्रांसजेंडर है उसके साथ कॉन्वर्सेशन किया तो पता नहीं मेरे साथ वो रहा when she talked about that she was raped and left on the street. Somewhere it stayed with me that वहाँ से खड़ा होना और वैसे टियरा पहनकर आना, राइट? सो कैसे वो आदमी वो पेन झेला होगा और फिर खड़ा हुआ होगा और वहाँ पे पहुंचा हुआ एकदम पहुंची और जैसे वॉक की। मुझे लगता है पता नहीं भगवान कोई स्किल दे ना दे, बट एक क्षमता दे कि अच्छाई लोगों में से पिकअप करते रहो। And I think that when you start looking at people with that lens, तो सब में कुछ मजेदार दिखना शुरू हो जाता है। I remember a little bit of an angrier version of Shraddha in 2015 and a more, I think, Restless. Yeah, a restless version. And एक जमाने में you know me, Yeah. people know me, I was so restless. एकदम रो I दो। remember you were pacing. Yeah, pacing or She used crying. to talk, baat bhi na, it used to be while talking. Like I don't think I remember even sitting down and having a conversation like this. It would be कि हाथ में एक डायरी है, फोन है, and you'll just be walking. और I'll be crying. कोई कुछ बोल देगा ऐसे लोग, oh my God, दिल टूट गया. Like I was a crying baby or this, but I've lived it all. Like I've lived by emotions. The best thing I like, and I would like to tell this to women and to men, but mostly to women and girls, live your emotions. बहुत अच्छा चीज़ पढ़ा मैंने शकीरा ने, she's gone through a divorce or something, and she said a very nice line. I thought it was a very simple but very nice, that the opposite of depression is expression. Wow. Right? So the opposite of depression is expression. Express yourself. Why are we thinking ro, haso, gao? Because the point is live that emotion, and that emotion should leave you that day. Then you're ready with a clearer mind for tomorrow. I don't know if it's the experiences that have happened over the past couple of years that have shaped you, but how do you not get angry? To answer your question, एक चीज मेरे साथ हुआ है और जो तुम्हारे साथ होगा और सबके साथ होगा, एक है टाइम बहुत बड़ा चीज होता है, एंड टाइम, एक्सपीरियंस, एज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब मैं
you know, Supriya, when I wake up, I know that 3, 4, 5 things will be bad or not good or not something I want. और people will treat me in a certain way. कल एक मीटिंग में किसी से मिली, वो ऐसे देखा कि मैं देखी मेरे पीछे कोई खड़ा है या नहीं, मैं थी ही नहीं। वो इंसान और बड़ा इंसान, तो रोज मतलब ऐसे होंगे। बट what I've constantly, the change that you see in me, is it every day, like brushing my teeth, it's an everyday habit कि मैं वो 6 चीज देखूंगी कि जो अच्छा है, और नहीं भी है तो खुद दिखवाऊंगी, और नहीं भी है तो मेरे फोन पे बहुत सारे पॉजिटिव कोट्स रखे हुए हैं मैंने, वो पढ़ पढ़ के देखूंगी। नहीं, अगर कहीं और नहीं मिला, अगर नेचर दिख गया ग्रीन, उसको 2 मिनट देखूंगी। लाइक हाउ एम आई गोइंग टू एवरी डे कल्टिवेट दैट गुडनेस फॉर मी? इट इज गोइंग टू बी अ हैबिट, इट इज गोइंग टू बी लाइक अ डिसिप्लिन। दिन के एंड में आई हैव ग्रैटिट्यूड। पहले लोग कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, ये करो वो करो, मुझसे नहीं हो पाता है। 2 दिन आदमी लिखता है, तीसरे दिन नहीं हो Habit पाता नहीं बन है, पाता। बाद में हैबिट नहीं बन पाया मुझसे। बट देन आई हैव सेड दैट हाउ डू यू सेंटर इट इन विथ योर इन योर ब्रेथ? हाउ डू यू से कि स्ट्रेस हो रहा है, रिकग्नाइजिंग कि अभी स्ट्रेस हो रहा है, ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है, अभी समवन हैज एक्चुअली ट्रीटेड मी बैडली, आई एम लिविंग दैट, आई ब्रीथ दैट, आई एम अवेयर, उसको छुपाती नहीं हो कि छुप गया, ये होता है। बट देन उसके बाद कि 2 मिनट में एम आई ब्रीदिंग फॉर माई सेल्फ, इज देयर लव? सो दैट हैबिट एवरी डे, नाउ इट हैज बिकम सो मेनी ईयर्स दैट आई फील आई एम बेटर, आई एम मच बेटर। अब कोई भी कुछ बोल के चला जाए कि तुम यूजलेस हो, यू कुडंट रेज योर यू नो स्केल योर बिजनेस वेरी बिग, यू हैवंट डन दिस, दैट क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी का हर दिन दिया है मैंने, सैटरडे संडे दिया है, यू विल अंडरस्टैंड, एवरीवन एज एन एंटरप्रेन्योर जिंदगी जिया है मैंने सिर्फ योर स्टोरी के तहत। तो इफ आई हैव गिवन माय लाइफ टू इट, आई हैव गिवन माय फुल कमिटमेंट पर्पस टू इट, तो जो बनेगा वो बेंचमार्क मैं अब खुद बनाऊंगी और बना रही हूँ कि एंड माय बेंचमार्क हैज नाउ बिकम, and this year I'm going to practice and see if I live up to, am I going to be enjoying what I'm doing more? Got it. बिकॉज 15 साल बाद आदमी इंजॉयमेंट थोड़ा कम कम होने हो जाता लगता है, रूटीन लगने लगता है, बर्डन लगने लगता है, मतलब होता है ना जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, तो वो वाला। तो अभी 15 years, कैन आई शो दैट यू कैन एंजॉय द गेम? कैन यू बी एवरी डे हैप्पी, every day, you know, there's genuine laughter, and that's what I'm going to do this year. And the second thing is, as a business, I'm in the process, I told you last time, to not be operationally, now there is a team, there's someone very senior and all the leaders who are joining April May, so I should be not operationally, there's a time to let go from what you were doing, because if I evolve To to who do you want more to be things, more. then only people will come and fill. Yeah. And then that is where you will see this year your story, that operationally they will be strong faces and leaders, and I should be out. Your story की journey में how many stories do you cover a year on average? No, we have overall covered 1.5 lakh stories. 1.5 lakh stories, right? And 1.5 lakh stories of some form of pain, some form of struggle, some form of challenge. So how do you how do you practice learning from these stories but also not get overwhelmed? You know, overwhelm अगर होना चाहे तो बहुत चीज़ों से हो सकते हैं. One has to have your own practice, your own tools, your own techniques. For me, meditation is a technique that helps me to center. अब तो मैं कहती हूँ मैं ऑपरेट ही नहीं कर सकती हूँ अगर मैं मेडिटेट नहीं करूँ. जैसे आज भी आई हूँ, मेरा तबीयत बहुत ख़राब रह रहा है पिछले 7-8 दिन से. आई एम ऑन एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दैट, बट समवेयर जस्ट meditating in the morning and night helps me to be in situations and not be in situations also, and not get overwhelmed. You know Shobit, my co-founder, right? And the two of us were in an advertising meeting, and this person on the other end of the table had invited me for the meeting. He had written to me कि आप आके मिलो. By chance Shobit free था, तो मैंने बोला तू भी चल साथ में, and it's a big opportunity. We should meet this person. And throughout that meeting, he didn't look at me. Of He course. invited me to his office, and he didn't look at me. And I didn't know how to not react. So, you know, it became visible that I was angry. I made a statement that I'm angry. I told Shobit, let's get up and leave. And then we left. But in retrospect, that shouldn't have been the way that, you know, I should have acted. No, so, how do it's you not okay. act out? No, it's okay. I think uh, acting like that at that moment when you feel bad, and expressing and letting that expression be is absolutely all right.
and you acted the way you should, or anyone would. The timing of this is such that it's Women's Month, and of course, being a woman and playing that role, you would have faced a different set of challenges. I mean, every entrepreneur has a common set of challenges, but as women, we face a different set. So, can you highlight maybe one or two instances where you felt that because of your gender, you were sort of discriminated against, या कुछ bias रहा होगा, and you weren't able to carry through with something that you wanted to do? Carry to I've carried through whatever I wanted to do. And I think most women and girls, मुझे लगता है because they face biases and challenges, वो उनमें एक muscle develop कर देता है that they carry through. You have, all of us have, and I see young girls, everyone, मतलब जब तक वो face नहीं करोगे bias or discrimination or that judgment, how will you have that spine? How will you have that fire? And I think that is very, very important. And on this Women's Day and week and whatever, I would like to say that actually embrace the negative that comes your way. And especially that कभी-कभी bias ऑब्वियस ढंग से नहीं आता है, बहुत ही सटल ढंग से आता है. आप किसी के नज़र में आता है कि इससे नहीं हो पाएगा, या किसी के रूम में आप बैठे हुए हैं, वो आपको इग्नोर करेंगे. दे विल नॉट लुक एट यू, दे विल लुक एट द मैन इन द रूम एंड हैव कॉन्वर्सेशन. क्योंकि सोचेगा वो समझेगा, ये क्या समझेगी, ये है रूम में, यू नो, लाइक side player kind of stuff. So there are so many ways biases come, but I just feel that biases और जो भी इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेरे लिए ये सबसे बड़ा वेपन रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ढाल रहा है कि उसके ऊपर खेली हूँ. On that incredible note about women, we have some amazing, inspiring young women in the room who have a lot of questions for us. So we'll just go one by one and take up the questions. हाय सुप्रिया, हाय श्रद्धा. मेरा नाम शिवांगी है और मेरी एज 26 है. मेरी फैमिली बिज़नेस में इन्वॉल्व है, मतलब मेरा बिज़नेस वाला बैकग्राउंड है. सो मेरे में भी शुरू से वो बिज़नेस वाला कीड़ा था. सो हम भी एक बिज़नेस करना चाहते हैं. बट दो चीज़ें हैं. एक तो जैसे योर स्टोरी के इंटरव्यू में सुप्रिया ने बोला कि वुमेन फाउंडर्स के लिए सेल्फ डाउट सबसे बड़ा चैलेंज होता है, एंड एट द सेम टाइम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है या पैसा चाहिए होता है. सो वो सेल्फ डाउट को क्लियर करते हुए और एक ठीक ठाक, मतलब मिनिमल इन्वेस्टमेंट में एक सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले बिजनेस खड़ा करने के लिए बड़ा पैसा नहीं चाहिए होता है. बहुत हद तक अच्छे बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए होता है. दूसरा, सेल्फ डाउट गलत चीज़ नहीं है. सेल्फ डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर सेल्फ डाउट रहा तभी हम एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ तक पहुँचे हैं, सर्वाइव कर पाए हैं. बहुत चीज़ों को, यू नो, एज अ रेस वी हैव इवॉल्व्ड. तो डाउट रहना, क्यों हम हर चीज़ को क्यों सोचते हैं कि नेगेटिव है और बुरा है? डाउट है तो क्वेश्चन है. दैट मीन्स समवेयर योर कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो टेलिंग यू कि अवेयर रहो, थोड़ा देख लो, थोड़ा गिरो नहीं, संभलो, दर्द होगा. तो कहीं ना कहीं आपको बचा रहा है आपका सेल्फ डाउट. तो एज लॉन्ग एज यू आर ओके कि हाँ डाउट आएगा, हर तरह तरह का डाउट आएगा. ऐसा नहीं शुरू करने के बाद भी 2 साल बाद कुछ और चीज़ को लेके डाउट हो, पार्टनर को लेके डाउट होगा, मतलब फैमिली को लेके डाउट होगा. तो डाउट इज ओके एज लॉन्ग एज यू शुड नो व्हाट इज द डाउट टेलिंग मी, व्हाट इज दिस डाउट इंडिकेटिंग, मेरे अंदर क्या है, कुछ चीज़ें किससे बचा रहा है ये डाउट. एक. दूसरा, आई एम अ फर्म बिलीवर कि वैसे की ज़रूरत नहीं होती है. यू नीड टू हैव डिटर्मिनेशन, एंड डिटर्मिनेशन एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैदान से निकलेंगे नहीं और करेंगे कुछ और करके देखेंगे. तो करो और enjoy करो. What's the worst? And to all the entrepreneurs and women especially, I will say, what's the worst that can happen if you start? जिंदगी में हमेशा क्वेश्चन होना चाहिए स्टोइसिज्म का, व्हाट्स द वर्स्ट. उसी से मैं चलती हूँ. व्हाट्स द वर्स्ट, क्या बुरा होगा? हाँ, अब घर में बैठे थे, घर ही में बैठेंगे. मतलब नहीं तो कोई ऐसे भी लोग सोचा था नहीं कर पाएंगे, नहीं किए, मगर ट्राई तो किए. हम लोग जब बिजनेस के बारे में बात करते हैं ना, एंड आई थिंक बिकॉज पिछले 3 साल से हम सिर्फ स्टार्टअप्स और फंडिंग के बारे में बात करें तो हम बिजनेस को ओवर ग्लोरीफाई कर देते हैं.
मतलब इट्स एज टफ और एज इजी एज एनी अदर प्रोफेशन, राइट? अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, आप लॉयर बन रहे हो, आप कंटेंट राइटर बन रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो हर प्रोफेशन टफ होता है। लेकिन जब बिजनेस की बात होती है तो हम सोचने लग जाते हैं इसमें बहुत चैलेंजेस अलग आएंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसमें वील हैव टू ग्रो एट अ सर्टेन स्पीड। तो आई थिंक अगर आप ब्रेक डाउन करो कि आज की डेट में मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ और उस प्रॉब्लम पे काम करो, फिर बिजनेस अपने आप एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बन जाएगा। अगर आप किसी की भी जिंदगी में कोई भी वैल्यू क्रिएट करोगे तो वो एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस बनाने के लिए। तो पैसों के बारे में मत सोचो, वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में सोचो। हेलो सुप्रिया, हेलो श्रद्धा, माय नेम इज़ काजल, आई एम 23 ईयर ओल्ड। मैं आर्किटेक्चर का कोर्स कर रही हूँ, मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, बट क्या होता है कि मैं एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली की वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पे बोलते हैं अरे क्या ही करोगी बन के, घर पे बैठ जाओ ना, अपना बच्चा संभालो, घर संभालो। पर लोग ये नहीं समझते कि एक औरत का भी सपना कुछ बनने का होता है। तो कभी कभी मैं बहुत सेल्फ मोटिवेट रहती हूँ इस चीज़ के लिए, पर कभी कभी वो चीज़ भी काम नहीं करती है। लगता है अरे छोड़ दो सब कुछ, घर पे ही बैठ जाओ। तो मुझे वो चीज़ सीखनी है कि कैसे हर सिचुएशन में हम स्ट्रांग रह सकते हैं, एट एनी सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ये याद रखना कि बहुत इनक्रेडिबल हो तुम, हाँ, और स्पेशल हो, क्योंकि वो कोई और नहीं बोलेगा तुमको, जो और तुमको वो खुद अपने आप को बोलते रहना होगा, क्योंकि जेन्युइनली हो, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा। घर का भी काम, शादी भी संभालना, ये भी करना, और तुम सब कुछ कर रही हो। और 18 साल में शादी करना, मुझे पता है, मैंने भी 19 में किया था, कि इट्स नॉट इजी एंड यू डूइंग इट। सो इमेजिन इफ यू कैन डू सो मच, मतलब तुम्हारे अंदर वो जब घड़ा है जो ये सब कर रहा है, तो फिर तुमको कहीं और देखने का ज़रूरत है नहीं। क्योंकि कुछ दिन, और ये मैं तुम्हें कह सकती हूँ कि भगवान भी अगर आए तो कुछ दिन, सब दिन अच्छा नहीं होता है, राइट? देयर आर डार्क डेज, तभी दिवाली बनता है, क्योंकि उससे पहले अंधकार होता है, राइट? सो दैट यू विल हैव डार्क डेज, तुम्हारा होगा। शायद अपने लोग तुम्हें कभी कभी चोट पहुंचाएंगे, और वो होता है, हम सब, ऐसा कोई नहीं है जिसके अपने पैर चोट नहीं पहुंचाए, रोड का थोड़ी पहुंचाता है, राइट? तो वो होगा, बट उसमें तुमको ये याद रखना है दैट आई मैरिड एट 18, I have a dream. Today I'm standing and speaking up for myself. That means that inner fire is in me. और तुमको वो फायर को प्रोटेक्ट करके रखना है, और तुम कर लोगी जो करना है। बिकॉज द पॉइंट इज कि आज मैं तुम्हें जो भी बकवास बोलूंगी, राइट? कुछ भी ज्ञान दे दूंगी, मोटिवेशन दे दूंगी, एडवाइस दे दूंगी, जियोगी तो अपने साथ, अपने हेड स्पेस के साथ। तो उस हेड पेज में रिमेंबर, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सेड, जब भी पेन आया है ना मुझे, और जब भी लोग कहें नहीं हो पाएगा और ये नहीं हो पाएगा, पता नहीं, वो मुझे बहुत मोटिवेट किया है, और मैं इतने साल जीत सकी हूँ, कर सकी हूँ, बिकॉज ऑफ दैट। सो प्लीज़ यूज़ इट टू योर एडवांटेज। मेरा नाम मिहिका है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे को स्केलेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या प्रॉफिटेबिलिटी पे करना चाहिए? आप लोगों ने इतना डिस्कस किया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आपके हिसाब से व्हाट इज़ द वन थिंग जो मतलब एक बिज़नेस को ड्राइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड हमें किस चीज़ पे फोकस सबसे ज़्यादा रखना चाहिए? I think you're talking to two people who are only focused on profitability, but with scale. I don't think कि एक पार्ट एड्रेस हो सकता है और दूसरा इग्नोर, बट जो अभी तक हवा में माहौल था वो सिर्फ था कि स्केल एट एनी कॉस्ट, बट अब मार्केट करेक्ट हो चुकी है। तो अब जो सबका ऑब्जेक्टिव यही है कि फंडामेंटली बिजनेस क्या होता है, राइट? आप कुछ अगर बेच रहे हो, तो आप जब उसको बेच रहे हो तो आप एक प्रॉफिट कमा रहे हो, जो नहीं हो रहा था पिछले 3-4 सालों में इन मोस्ट स्टार्टअप्स। बट फंडामेंटली तो वही वैल्यू क्रिएशन होती है। सो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एंड एट अ यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल, विच इज़ अ न्यू वर्ड दैट नाउ एवरीबडी इज सडनली केयरिंग अबाउट, but not at the cost of scale, right? Like even for us at Josh, if we want to create impact, we don't talk about a few thousand, you know, 2,000 लोगों ने हमारी जोश टॉक्स की वीडियो देख ली, that's not exciting enough. इंडिया में मतलब इतनी आबादी है, तो अगर हम 600 700 800 मिलियन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो कैसे चलेगा? तो फिर क्वेश्चन ऑफ स्केल कम्स इन, प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट, देन स्केल। I would add that if you are starting up, don't think about anything. Profitable, मतलब इतना बड़ा बड़ा वर्ड यूज कर रही हो, profitability, scalability, no. First I would say कि focus only on a user. दिल जीतो यूजर का,
बाकी प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, whatever will come. It all happens. फोकस है. मैं बहुत बड़े लीडर्स जो देखूं दुनिया के, जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, लाइक लुक एट एनी बिग लीडर, व्हाट डू दे से? देयर मेट्रिक्स एवरी डे इज दैट इज माय यूजर हैप्पी विथ मी. तो जो भी शुरू करो, सोचो कि जो भी, जैसे तुम्हारा यूट्यूब है या जो भी है, जहाँ पे भी है, कि मेरा यूजर मुझसे खुश है या नहीं, एंड देन एवरीथिंग एल्स फॉलोज. हेलो सुप्रिया, हेलो श्रद्धा। मेरा नाम रागिनी है और मैं 22 साल की हूँ। मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं 11th-12th की सीबीएसई का बायोलॉजी सब्जेक्ट का मेन कंटेंट डिलीवर करती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंस लास्ट 2-3 ईयर से एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है यूट्यूब पे, एंड बहुत सारे कंटेंट अब यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी। मतलब पढ़ाई की अब कमी नहीं है यूट्यूब पे, बिकॉज टॉप टीचर ऑलरेडी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम ऐसा क्या इनोवेटिव कर सकते हैं कि मेरा चैनल भी स्टैंड अप हो वहाँ पे। गॉट इट. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें. देखो, अगर ये मैं बता सकती तो मैं भी ये यूट्यूब एजुकेटर होती. देखो, तो मैं भी पैसे कमाती और हीरोइन बन जाती, मगर मैं नहीं जानती हूँ. बट व्हाट आई नो, एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी बिजनेस एंड फॉर व्हाट यू आर डूइंग ऑल्सो, go back and ask your user that what is it that they will want from you. तुमसे उनको क्या चाहिए. अगर तुम्हारा 5 यूजर भी है, उससे पूछो अलग तुमको क्या चाहिए, क्योंकि तुम्हारे यूजर से तुम्हारा आंसर मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा. क्योंकि जो तुम्हें वॉच कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, जो तुम्हारा ऑडियंस है, जो सीबीएसई का कह रही हो, 11th-12th का, वो स्टूडेंट से पूछो कि अच्छा तुमको और अलग क्या चाहिए जो कहीं और नहीं मिल रहा है. मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ जो कहीं, वो तो उससे जो इंसाइट मिलेगा ना, वो कहीं और नहीं मिल पाएगा. सो गेट दैट, फोकस ऑन गेटिंग दैट इंसाइट. आई थिंक एक और चीज़ जो आप कर सकते हो, एक तो है कि खुद के यूज़र से बात करो, बट एक है कि जो टीचर्स आज की डेट पे पॉपुलर हैं यूट्यूब पे, राइट. हम लोग अब फिजिक्स वाला का नाम तो जानते ही हैं, जो बहुत ही बड़े टीचर बन चुके हैं. सिमिलरली खान सर का एक चैनल है जीएस रिसर्च के नाम से. फिर थिंक स्कूल है. बहुत सारे चैनल्स आजकल पॉपुलर हैं और उनकी बहुत कल्ट लॉयल्टी है या यूज़र बेस है. तो आप उनके भी यूज़र से बात कर सकते हो कि अगर आप घर पे भी पूछ लो ना कि कौन दिखता है. जैसे मेरी मम्मी खुद खान सर के वीडियोस देखती हैं, एंड उनका कुछ लेना देना नहीं है स्कूल की पढ़ाई से, बट बिकॉज उनके पढ़ाने का तरीका या सिखाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है कि उनको भी कुछ नया मिल जाता है सीखने को, इसलिए वो देखती हैं. तो ऐसी इंसाइट्स आपको मिलेंगी जैसे श्रद्धा बोल रही हैं, बट उनके चैनल, अपने कंपेटिटर्स या जो भी आपको आपके रोल मॉडल्स हैं इस स्पेस में, उनके यूज़र से बात करके भी. हाय सुप्रिया, हाय श्रद्धा. मेरा नाम प्रकृति है और मैं 24 साल की हूँ. मेरा क्वेश्चन बिजनेस रिलेटेड है, सो आप दोनों से है. अगर बिजनेस ऑलरेडी मेरा या किसी और का 0 to 1 पे पहुँच चुका है, तो हम 1 to 100 तक का लीप कैसे ले सकते हैं? It is hard to reach 0 to 1, because 0 to 1 if you've reached, then that means what does it mean 0 to 1. अगर उसको डीकंस्ट्रक्ट करो इसको, तो यानी कि प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ गया है, राइट. तो पता है कि कोई पैसा देगा इसके लिए, यूजर कौन है, थोड़ा सिग्नल्स हैव आर क्लियर, एंड इफ यू हैव द सिग्नल्स क्लियर, then scaling up is easier. Because sometimes the challenge is, if you see that people make such big businesses without knowing कि market fitment है या नहीं. So to me, any business has to have product market fit. Yeah. And 0 to 1 is a great, because it requires lot of honesty to say कि ये user pay कर रहा है, stick कर रहा है, whatever your analysis is, right, वो हो रहा है. तो अगर वो हो गया तो 100 जाना बहुत, कोई भी मतलब उसको हायर कर लो, लोग को हायर 100 ले जाने के लिए. I think just adding on to that, right, and Shraddha ended with that, I think hiring in the team is the most important part, right. तो 0 to 1 में तो हम फंडामेंटल क्वेश्चंस ही आंसर कर रहे होते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, एंड वंस वी हैव प्रूफ कि ये चल रहा है या हमारे पास यूज़र आके खरीद रहा है और यूज़र रिटेन कर पा रहे हैं हम, वो बार बार आ रहा है, देन इट्स जस्ट अ फंक्शन ऑफ कि जो भी आपने सीखा है इन टर्म्स ऑफ अपनी लर्निंग्स, क्या आप उसको डॉक्यूमेंट करके रेप्लिकेट कर सकते हो या नहीं, एंड कैन यू देन फोकस ऑन गेटिंग अ टीम दैट स्टेज विद यू एंड कैन टेक हाई ओनरशिप ऑफ एक्चुअली अचीविंग दोज गोल्स और नॉट. अगेन लाइक ग्लोरीफाई मत करो, इट्स नॉट एज like hard as we think it is, like 0 to 1 and then 1 to 100, these are big terms. It's just about कि जो सीखे हैं उसको replicate कैसे करें, and उस replicate जब कर रहे हैं तो rigor कैसे maintain करें. Hello Supriya, hello Shraddha. My name is Swalya and I am a student
So I have a my career also, and I have a मतलब मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं करियर में, जैसे मुझे ग्रेजुएशन करना है तो 3 साल लगेगा, बट एक्चुअली आई एम वेरी इम्पेशेंट। मुझे बिल्कुल भी पेशेंट पता नहीं क्यों तब नहीं है। ग्रेजुएशन जल्दी करना जल्दी चाहते हैं? ख़त्म हो जाए और कैसे भी करके बस मैं एक लेवल अचीव कर लूँ। मैं मतलब एक अपना स्टेटस बना लूँ जिससे मेरे घर वाले, मेरे आसपास के मेरी रिस्पेक्ट करने लग जाएं। लेकिन ग्रेजुएशन बहुत टाइम ले जाता है। मैं साथ में टीचिंग भी करती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि जो मैं टीचिंग कर रही हूँ उस चीज़ को मैं थोड़ा और हायर लेवल पे लेके जाऊँ। कभी कभी मेरा माइंड करता है कि कोई बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि टीचिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो ऐसा मतलब समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है। कभी मन करता है कि कुछ ऐसा जल्दी करूँ मैं कि उस चीज़ को गेटअप कर लूँ। तो आई हैव अ आपको तो क्वेश्चन दिस। 100% एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। जो आपके ये जो सारे थॉट्स है ना, जो ये आप अगर आप 100 चीज़ों को सोच पा रहे हो एक ही मिनट में और उसको इतनी अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हो। अब मुझे पता है कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या पढ़ना है, कॉलेज कितनी जल्दी करना है, आपको 100% बिजनेस पे जाना चाहिए। मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ। जब घर में दर्द होता है ना तो आदमी जल्दी जल्दी उड़ना चाहता है, क्योंकि वो सब ताकि उड़े, ताकि घर में भी खाना लाए और वो हो। तो समझो क्यों ये रेस्टलेसनेस है तुम्हारे अंदर और ये जल्दबाजी, ये मेरे में भी था। मैंने भी ट्यूशन लिया ग्रेजुएशन जब पढ़ा रही थी तो, कि और लगता था पैसा आ जाए, पैसा रोज़ सपने आता था कि पैसा आ जाए, कि सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ लेट इट बी, डोंट बी रेस्टलेस। बोलना आसान है, जो कर दियो पढ़ाई, पढ़ा दियो लोगों को, डू कीप डूइंग समथिंग और दी अदर। सो इट्स ओके, इट्स नॉट अबाउट वन थिंग। वन थिंग क्या कहता है? वन थिंग डजेंट मीन तुम्हारा वन थिंग क्या है। अभी तुम्हारा वन थिंग है कि आत्मनिर्भर बनना, right? Yes, self independence, my darling. So that one thing, you can do 2 3 things to be in that one thing zone, right? और रेस्टलेस मत रहो, क्योंकि मैं बहुत रह चुकी हूँ वहाँ पे जहाँ पे तुम हो। क्योंकि मुझे सॉल्व करना था बहुत प्रॉब्लम और पेन और पैसा और घर में और अपने लिए और अपने आसपास भाई बहन के लिए। बट द पॉइंट इज़, जब मेरे स्टेज में आ जाओगे तो वो आदमी मिस करता है, राइट? कि वो 3 साल भी कितने मज़े के थे, राइट? लाइक वो फुर्सत के रात दिन थे। सो जियो अभी, बट डू 3 4 थिंग्स, do whatever, but let that, don't leave college. Please, you come from a middle class family, I will tell you, do your normal degree. ये सुरक्षा कवच आज के देश, आज के दुनिया में भी है, नहीं तो माँ बाप मर जाएंगे, सब एकदम स्ट्रेस में हो जाएगा। सो डू दैट, बट डू 3 4 थिंग्स that gives you money, gives you opportunity. Think what it is, and that is your one thing, to be independent. व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर और एक चैलेंजिंग फेज आता है आपके एंटरप्रेन्योरल जर्नी में, ऐसे कोई चैलेंज जो आपके एंटरप्रेन्योरल जर्नी में आए हैं जिसमें यू हैड टू चूज बिटवीन योर पर्पस एंड योर पर्पस, बट ऑल्सो देयर वाज दैट टेम्पटेशन दैट यू हैड टू फाइट, एंड हाउ डिड यू डू दैट? Oh, I have had a lot of temptations. सबके रास्ते वो होता है ना, if you go spiritually, then the temptations come. The more you try to be focused, the more temptation will come. The more you want to be disciplined. देखो, जिस दिन कहूँगी आज रात में 12 बजे तक पढ़ेगी, उसी दिन नींद आएगा, right? So there has been a lot of that temptation in my journey. There has been lot of distraction and self-created. मैंने खुद, मैं बोलती हूँ, लोग कहते हैं इतनी focused हो, I have got so distracted. I have been in a zone where I have sought so much of love, validation and all that kind of stuff. But हमेशा मैं circle back करती हूँ, शायद मेरा, and that is true for entrepreneurs and that's true for maybe mothers or people or whatever, is that the focus always says that your story is the most important priority for me, right? मैं वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो जैसे अगर किसी माँ से बोलो तो वो अपने बच्चे को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, तो वो फोकस अपने आप आ जाता है। दैट एंड यू हैव टू समटाइम्स लेट गो ऑफ वेरी गुड थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज you know that the priority is here. And I think if you ask any mother, they don't feel guilty about it. They don't feel अरे मैंने sacrifice किया. No, because it's very natural, conscious, de facto. तो या वैसे किया है मैंने। I also think that there is no
right or wrong in this, right? Like a lot of companies merged with larger companies within COVID because they got an opportunity to sell. And different type के entrepreneurs होते हैं. कई लोग business शुरू करते हैं बेचने के लिए. And that's great. The whole objective of starting a business should be to make a lot of money while doing it, right? And when they see an opportunity, they do sell it. And COVID gave that opportunity to a lot of people. But there are a few set of people, and Shraddha is an example of that, and we try to be an example of that as well, which is that you're building for a larger purpose or a larger outcome. And money is a secondary offshoot. कि पैसा तो बन ही जाएगा, राइट, बट जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, क्या हम उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. एंड आई डोंट थिंक अ लाइफ टाइम इज ऑल्सो इनफ फॉर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव ऑल डिसाइडेड टू टेक ऑन टू एक्चुअली सॉल्व. सो देन दैट शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट अबाउट सेलिंग जस्ट गोज अवे. वॉट इज श्रद्धा शर्मा's purpose now in life? देखो I told you last time also, and I'm just saying now also, I want to make inner journey, because inner journey is very difficult. लोगों को देखना, लोगों को एनालाइज करना, सबको देखना, बाहर देखना बहुत आसान है. 2 आँख मिला भी है कि बाहर आदमी देखे, बट अंदर देखना, अपने अंदर देखना, और अपने अंदर क्योंकि हम जीते तो अपने दिमाग में. And this is for all the girls and women. We live so much in our head. Yeah. It is not funny. We are constantly judging our own I have to selves. tell you something from yesterday. It was too interesting. So कल हमारी पूरी जो conversation थी वो self doubt और under confidence पे थी. When I was speaking to one of Shraddha's colleagues on stage, and उसके बाद ना there was मितुल was there. There was a mob. बहुत सारी लड़कियाँ आके बात करना चाहती थी about their business. वो जोश से कैसे associate कर सकती हैं and all. And फिर थोड़ी सी like काफ़ी सारी 20-year-olds थी, and फिर थोड़ी सी older women or ladies भी थी in their 50s or you know like early 60s. This lady, she came up to me and she said कि how old are you? And I said that I'm 29, and she's like, you look so young, you look so young. And another lady answers, it's because she's short. एंड शी सेड ये इसकी हाइट छोटी है ना तो इसलिए ज़्यादा यंग लगती है. एंड मतलब हमने 1.5 घंटा बिताया अंदर जहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को जज ना करो, और फिर बाहर जाके हम हाइट पे, वेट पे, कम्प्लेक्शन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, और फिर हम जता रहे हैं कि यू नो हम एक कम्युनिटी का पार्ट हैं. विमेन एक तो जज देमसेल्व्स, देन दे जज अदर विमेन. And that's why we need to keep celebrating Women's Day again and again. Otherwise, this would have been such a mainstream So, but Supriya, I conversation. agree, and I think what they told you, I think first of all, you are so beautiful. I too said you are beautiful. तो short height, long height, ये सब नहीं देखी मुझे, तो तुम में बहुत सुंदर, बहुत ही beautiful and adorable girl दिखती है, और दिखती हो, सबको दिख रहा है. But I would say, but I will one here say that it's not just that women judge. It's men also who judge, Yeah. right? Men आके बोलेंगे नहीं, वो एक दूसरे में भी जोक कर लेंगे ये वो. So it is, as human beings we are very judgmental, क्योंकि हम पीस में नहीं हैं. जब तक हम इनर पीस में नहीं होंगे, हम दूसरे को जज करते रहेंगे, right? Until unless we find our own sense of, अगर मैं खुश हूँ, मुझे लगता है मैं सुंदर हूँ, तो तुम भी सुंदर दिखोगी. तुझ में रब दिखता है क्योंकि मुझ में रब दिखता है, राइट? अगर मुझ में डाकू दिखेगा तो तुम में रब कैसे दिखेगा, राइट? तो This filmy side of you. no, but it is so true. No, Yeah. what is it? This is really a fact. तो अभी जब आदमी अपने आप में अच्छे खुश नहीं रहेगा, तो अपने आप को short. Someone who told you this would be judging themselves so harshly. You should just hug them, and there's compassion, because you know, and with time you will realize they need compassion. Yeah, I love it. One lady told me, we were speaking about marriage, and I was just saying there's a lot of pressure now and everything. I'm going to turn 30, and this lady comes up to me and she runs some jewelry brand, and she said, तुम जब दुल्हन बनोगी मैं तैयार करूंगी तुम्हें. I said conversation ही यही है कि pressure feel हो रहा है और शादी नहीं करनी. But I love it. I at least I think what's changed over the last couple of years is that there are so many women in business now, and that's extremely exciting. Yes, it will only grow. It will only grow. I think next 10 years, लोग कहते हैं इंडिया का ईयर है, ये ईयर है, वो ईयर है. I think next 10 years is for girls, for women, and it will be. And women are so incredibly smart, intelligent, high EQ, compassion. मतलब सब कुछ कूट के भगवान दे दिया है. मतलब कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, अमेजिंग दे दिया है. एंड इट इज़ टाइम नाउ वी विल सी, एंड मेन विल आल्सो सी. आप हमेशा ये बोलते हो कि
टू ग्रो इन लाइफ एक चीज़ हमें जो डेवलप करने की ज़रूरत है वो है रीढ़ की हड्डी. Yes. So I just wanted to ask, I think I was reading one of your posts and I wanted to understand कि मतलब ये क्या थॉट है एंड आप मतलब जब आप बोलते हो रीढ़ की हड्डी ऑब्वियसली इट्स मेटाफोरिकल, तो ये आपको क्यों लगता है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है एंड हम ये कैसे एट ए यंग स्टेज इन आवर लाइव्स हाउ डू वी रियली मेक इट स्ट्रॉन्गर? सो It's a very beautiful question. Thank you for asking this. पहले मैं कहूँगी क्यों कहती हूँ मैं रीढ़ की हड्डी डेवलप करने चाहिए, क्योंकि ये पहले हमने एड्रेस इन डिफरेंट वेज वी एड्रेस दिस इज दैट यू नो व्हेन यू डोंट हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, योर ओन माइंड, योर ओन थिंकिंग, योर ओन कन्विक्शन, योर ओन लव, योर ओन एवरीथिंग, तब पता है दुनिया खींचते रहता है आपको. और मतलब एकदम ऐसे ऐसे खींचेगा ना दैट they'll start taking a part of your soul, they will start taking part of your happiness, they will start taking, and not because they want to take, because ये विधि का विधान है. तो जब तक अपना ढांचा में मजबूती नहीं है तब तो आप उड़ते रहेंगे हवा की तरह और लोग उड़ाते रहेंगे वेदर कंडीशंस की तरह. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन ग्रेविटास, योर ओन ग्रेविटी, योर ओन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, एंड दैट्स वाई से रीढ़ की हड्डी होना इम्पॉर्टेंट है कि उड़ो नहीं कि लोग उड़ाएं, तो जहाँ खुद उड़ना है उड़ो. सो हाउ डू यू डेवलप दैट एंड हाउ कैन यू डेवलप दैट इज़, मुझे लगता है ओरिजिनल थिंकिंग, और ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करना होता है. जैसे अगर मैं कहूँगी कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे स्कूल जाना चाहिए, ऐसा सक्सेस होना चाहिए, तो क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, और हमें क्वेश्चनिंग करना नहीं सिखाया जाता है हमारे स्कूल में, और स्कूल कॉलेज तक के बाद हम बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि हम चुप हो जाते हैं, हम एक सिस्टम के इंसान हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन ही नहीं करते, एकदम मुंह बंद होता है. क्वेश्चन एक दूसरे को जज करते हैं मे बी ये वो, मगर क्वेश्चन यू हैव टू क्वेश्चन what is my, like if I ask what is my sense of happiness, your sense of happiness will be very different from my sense of happiness. What is my sense of fashion, what is my sense of relationship, what is my sense of marriage, what is my sense of companionship. So developing your own first principle original thinking, आपका point of view क्या है, मतलब मैं बोलूँ खड़े होके जो भी, तो इट्स नॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू. सो हैविंग फर्स्ट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी से भी पूछो, मुझसे पूछो, हम लोग का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं है. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि शादी कर लेना चाहिए 30 साल तक. कौन बोला, कौन बोला कि शादी 30 तक, मेरी मर्जी, मैं नहीं करूँ 40 पे करूँ, इट्स ओके नो, राइट. और मेरा मन है आज 20 में करने का, 18 में कर लूँ, मेरी मर्जी. who is there to, so that is very important, and I would urge everyone through this channel, good that you are asking this question through Josh, and to all the girls I would say, develop your own point of view on everything. And second thing is that my submission to women and girls, health पे ध्यान रखना, like fitness पे, राइट, बिकॉज हम वुमेन सबके फिटनेस पे ध्यान रखते हैं पर अपने नहीं. एंड यू लुक एट आवर मदर्स, या लाइक आई फील आवर मदर्स जनरेशन, हम कहते हैं कितनी महान थी, सेल्फलेस थी, मर गई. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ and fitness, and I tell all the girls and everyone that be very very fit and be very very healthy, because that also develops a very clear thinking, that develops stamina, that develops stamina to take bullshit and criticism and गिरे नहीं तो फिर तबीयत ही खराब हो गया, कोई कुछ बोल दिया. So that second thing is fit लगना चाहिए, hot लगना चाहिए, खुश रहना चाहिए. और एक हॉट लगना चाहिए पिंकी. क्यों नहीं एकदम hot full joke. And the third thing I would say is develop a lot of expertise. This I tell girls, किसी भी room में enter करो, you don't have to be the smartest in the room, but you have to be the most well prepared. Okay, summing up, I think a lot to take back today, Shraddha, and as always, talking to you is so easy. And there's so much more to learn. I think over the last couple of interactions with Shraddha, one is that I have decided to now get into meditation, and I think a lot of that contribution comes from all the conversations we've had. But I think what I've learned a lot from you, and this is something I heard Priyanka Chopra recently say in an interview, is that be like water. Wow. And the reference was that a water fits into any vessel that you give it, but it also has this sense of calm and stillness. And I think every time that I talk to you, I can just see that calm and that stillness develop while being someone who can fit into any mold, play any position.
So thank you for doing what you do, and thank you for having this amazing interaction with all of us. Supriya, I have to also say this, that I'm very, very proud of you, and I know the journey that you've made. जोश टॉक्स जो अभी जहाँ तक तुम पहुँचाई हो, और जितने I know how much passion, how much commitment, how much madness you bring to this, and it's a very good example. You are a very good example to young girls, and especially now that we are having context in this Women's Week, that young girls can go and make things happen, and you making things happen, and I'm very, very proud to be sitting next to you. Thank you so much. Thank you. Another thing which I'm really hopeful and optimistic about is seeing India develop and seeing the women of India develop. The environment around us makes us believe कि if you're not raising capital, you're a loser. है ना? And जो last 2-3 years थे, मतलब with the announcements that are coming, and big publications don't publish about you unless you've raised कि 5 million 10 million के ऊपर अगर आपने raise किया, तभी वो आपके बारे में लिखते हैं. Sometimes we feel uncomfortable in a gathering because the domination of men is way too high compared to women in the room, and that needs to be corrected. For us it matters that a lot कि हमें बहुत लोग मिले जो generalist हैं, बहुत लोग मिले जिनमें will बहुत ज़्यादा है and skill हम सिखा सकते हैं. But I think as we grow we'll have to move into a place where hiring for skill will become more essential than will. उस टाइम पे मैं सोचती कि हाँ इन्होंने मेरे पे डाउट कर दिया, मैं फर्दर अपने आप पे डाउट कर रही हूँ, मैं नहीं होती बिजनेस में, या मैं छोड़ देती, या मैं गिव अप कर देती, या मैं कहती इनोवेशन मेरा एरिया नहीं है, प्रॉब्लम मुझे कुछ और करना चाहिए. तो या तो मामा अर्थ आज वो नहीं होता जो मामा अर्थ आज है, जितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, या मैं यहाँ पे नहीं होती. तो दो में से एक ही चीज़ हो सकती थी.